Hello children, I'm back again with my next video which is about respiratory volume and capacities. And today we are going to learn about the various holding capacity of our lungs, the how much air or how much gases can our lungs hold, and what is the actual capacity or volume capacity of our lungs. So in this video we are going to learn about various respiratory volumes and their capacities. So again, NCERT along with few videos and examples, I'll be showing you this topic. So the first thing is tidal volume. As you see in your NCERT also, it is written that volume of um air inspired or expired, volume of air inspired or expired during a normal respiration, when a person is not doing any kind of forcible respiration, when a person is normally breathing, no force is being used, then how much or what is the capacity of lungs at that time in a normal condition, that is known as tidal volume. So in your NCRT you can see volume of air inspired or expired during a normal respiration. It is approximately 500 milliliter. That is, a healthy man can inspire or expire approximately 6,000 to 8,000 ml of air per minute. So this is these numbers actually tell us that the lungs are healthy if a person is having this much of tidal volume in his or her lungs, then her lungs or his lungs are actually healthy, and the person is also healthy. Now here also again, during normal breathing, the volume of gas inhaled or exhaled in each respiratory cycle is called the tidal volume. No forcible breathing is being done here. Okay, that is tidal volume or TV. Next is inspiratory reserve volume. Now, inspiration means taking in of gases, and reserve volume, they understand what you always have something in reserve at home. You have rations which you keep in reserve at home. Okay, why do you do that? Because you need to see that if things are over or you have finished, you are out of rations, you can take out something from that reserve portion and use it. So inspiratory reserve volume, these reserve volume or these reserve gases help the lung not to collapse. These will help the lungs not to collapse. Okay, so this is reserve volume, IRV. So you see inspiratory reserve volume. What does it say? It's additional volume of air. What is IRV? It's additional volume of air when a person is forcibly trying to inspire. Okay, when a person is forcibly doing the inspiration, जोर से सांस लेते हैं, like we do in pranayam. What we do in pranayam, Baba Ramdev says, always he says that जोर से सांस लो. See, a forcible inspiration. Okay, now I'm not breathing normally, I'm trying to do it forcibly. So that is IRV or inspiratory reserve volume, and the average is 2500 ml to 3000 ml. Okay, for IRV. Again, here it is the volume of additional gas. This is the additional gas. In normal inspiration, whatever the volume has been taken, normally that is tidal volume. But in forcible inspiration, some amount of gas will be taken extra, you know, some extra amount of gas will be taken in, and that additional volume is the IRV or inspiratory reserve volume. Similarly, next one is ERV, that is expiratory reserve volume. When we do forcible expiration, that is ERV
or expiratory reserve volume, and here again additional volume of air when a person can expire by forcible expiration, and that average volume will be 1000 to 1100 ml. See, it's the volume of additional gas that can be exhaled through forcible expiration. Okay, so these are the three types of respiratory volumes. I have told you, one is tidal volume, other one is IRV, that is inspiratory reserve volume, and next one is ERV, that is expiratory reserve volume. So the next is residual volume. You see, next one is residual volume. What does it say? RV, volume of air remaining in the lungs even after a forcible expiration. That is known as your RV, or residual volume. Whenever a person is trying to, now I was thinking कि कुछ बच्चे दिमाग में सोचते होंगे कि अगर हमने ERV कर दिया, ERV means expiratory reserve volume, हमने forcibly additional gas भी निकाल दी, normal तो निकाली, उसके साथ forcibly हमने additional gases भी बाहर निकाल दी, तो हमारे तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे. बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज आरवी हमेशा रहता है हमारे लंग्स में. व्हाट इज आरवी? दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम. मतलब अगर हम फोर्सिबली भी एक्सेल कर दें, अगर हम फोर्सिबली भी एयर को एक्सेल कर दें, तो भी एक अमाउंट ऑफ या एक वॉल्यूम ऑफ गैस जो है और एयर जो है वो हमारे लंग्स में रहता है, एंड दैट अमाउंट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम और आरवी. और वो एवरेज कितनी होती है उसकी? 1100 ml to 1200 ml. So remember this, even if we have done a ERV, even if we have thrown out, forcible expiration has been done, still some volume of air will be there inside the lungs, which is called residual volume. Okay, now they say that by adding up few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis. Now, how many have you learned? How many respiratory volumes have you learned? Again, first one is TV, that is tidal volume, which is normal expiration or inspiration. Then you learned about IRV, that is inspiratory reserve volume. Then ERV, expiratory reserve volume. And then was residual volume. So they say that using them, we can find out certain pulmonary capacities. What that means, we can find out the capacity of a lung, and the doctor can diagnose whether the person's lung is healthy or not. Now, first one is inspiratory capacity. Now, you see, the first one is inspiratory capacity. What is inspiratory capacity? I see total volume of air a person can inspire after a normal expiration. Now, children, what does it mean? Total volume of air. Now, I just want to tell you this or explain you this कि जब एक नॉर्मल इंसान को हम कहते हैं कि आप नॉर्मल एक्सपिरेशन करो, एक्सपिरेशन मतलब एयर आप अभी बैठे बैठे कर सकते हो, यू कैन ट्राई इट. आप नॉर्मली एक्सपायर करो. एक्सपायर मीन्स वो वाला नहीं, नॉर्मल एक्सपिरेशन या एक्सलेशन करो. तो जब आप नॉर्मल एक्सलेशन करते हो, दैट मीन्स आप फोर्सिबली नहीं कर रहे हो. नॉर्मल एक्सलेशन जब आप कर रहे हो, तो उसके बाद एक्सेल करने के बाद आप इनहेल भी तो करोगे. तो नॉर्मली एक्सेल करने के बाद जब आप इनहेल करते हो, तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर या गैस आप अपने अंदर लेते हो? कितना ले सकते हो? कितना वॉल्यूम आप एक्सलेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप अपने लंग्स में फिट कर सकते हो? तो बच्चे से मैंने पूछा, तो बच्चे ने कहा कि मैम मैं टीवी और आईआरवी दोनों ले सकता हूँ, है ना. टीवी तो नॉर्मल इंस्पिरेशन है, वो तो ले ही सकता है, और अगर थोड़ा जोर लगाएगा तो आईआरवी भी ले लेगा. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले तो आप अपने लंग्स को खाली कर दो एक्सेलेशन करके, एक्सेलेशन करने के बाद और नॉर्मल एक्सेलेशन करके, एक्सेलेशन करने के बाद नाउ इफ आई आस्क यू टू डू इनहेल, तो नॉर्मली तो आप इनहेल कर ही लोगे, लेकिन थोड़ा सा फोर्स लगा के आप कुछ एक्स्ट्रा भी तो इनहेल कर लोगे.
try it, you will be able to do. और that is your inspiratory capacity, वो आपकी इंस्पिरेशन की कैपेसिटी है. तो इंस्पिरेशन की कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? IC इज इक्वल टू TV प्लस IRV, राइट. Next we come to expiratory capacity, that is EC. Now again the same question, if I ask you कि total volume of air a person can expire, कितना आप बाहर एयर निकाल सकते हो एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद. तो मैं आपसे कहती हूँ बच्चे को, बेटे आप नॉर्मली इंस्पिरेशन करो, नॉर्मल इंस्पिरेशन, कोई जोर नहीं लगाओ, नॉर्मल इनहेलेशन करो. तो जब वो नॉर्मल इनहेल कर लेता है, मैं कहती हूँ अब एक्सेल करो. तो एक्सेल जब वो करता है, नॉर्मली तो एक्सेल करता ही है और थोड़ा दम लगा के थोड़ी सी और भी निकाल देता है हवा, राइट. तो उसका ईसी क्या हुआ, उसका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या हुई? सेम टीवी प्लस ईआरवी. अंडरस्टूड? इजी है, आई डोंट थिंक कुछ मुश्किल है इस, राइट. नेक्स्ट, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. नेक्स्ट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. उसमें क्या है? FRC, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. सो नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद, नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद भी, मैंने कहा ना ऊपर कि कुछ अमाउंट ऑफ एयर, रेसिडुअल एयर आपके लंग्स में रह जाएगा. तो वो जो रेसिडुअल एयर है, नॉर्मली जब आपने एक्सेल किया है, आपने अभी फोर्सिबली नहीं किया, अभी आपने नॉर्मल एक्सेलेशन करी, तो नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद आपके लंग्स में क्या बचा? आरवी तो बचा क्योंकि वो रेसिडुअल है, पर ईआरवी भी तो बचा क्योंकि अभी आपने नॉर्मल एक्सेलेशन करी है, आपने फोर्स यूज करके एक्सेलेशन नहीं करी. हाँ, अगर मैं आपको कहती नहीं जी आप फोर्सिबली एक्सेल करो, अगर मैं आपको कहती फोर्सिबली एक्सेल करो, तब आपके लंग्स में क्या रह जाता? सिर्फ आरवी. पर मैंने अभी आपको क्या कहा? सिर्फ नॉर्मल एक्सेलेशन करो. तो नॉर्मल एक्सेलेशन जब आपने करी तो आपके लंग्स में ईआरवी तो बचा क्योंकि आपने फोर्स तो लगाया ही नहीं, प्लस उसके साथ रेसिडुअल वॉल्यूम भी बचा. तो आपका FRC क्या हुआ? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या हुई? ईआरवी प्लस आरवी. अब ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है? अभी आप लोग जैसे आप मेरे इस वीडियो को सुन रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आप क्या फोर्सिबली एक्सेलेशन कर रहे हो? नहीं ना, आप तो नॉर्मल एक्सेलेशन कर रहे हो. तो आपके लंग्स में जो बच जाता है, फंक्शनल एयर जो रह जाती है लंग्स के अंदर, जो इस वक्त आपके लंग्स को काम करवा रही है, वो कौन है? वो दो चीजें हैं, एक ईआरवी प्लस आरवी. अंडरस्टूड? FRC का मतलब समझ आ गया. नेक्स्ट आगे देखेंगे. नेक्स्ट इज वाइटल कैपेसिटी, दैट इज VC, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन. वाइटल कैपेसिटी क्या है? जब मैं आपसे कहती हूं कि बेटा आप ऐसा करो, आप जोर से एक्सपिरेशन करो, फोर्सिबली एक्सपिरेशन करो, यानी खूब दम लगा के अपने लंग्स को खाली कर दो. खाली करने के बाद, अब तो आपके लंग्स खाली हैं, तो खाली करने के बाद आप कितना मैक्सिमम वॉल्यूम अंदर ले सकते हो? तो आप कहोगे ईआरवी जो मैंने जबरदस्ती बाहर निकाला था, टीवी और आईआरवी भी ले सकता हूं, है ना. सोचो, क्योंकि आपने बहुत दम लगा के एक्सपिरेशन करा, तो क्या क्या आप वापस ले सकते हो? जो आपने बाहर फेंका वो तो आप लोगे ही, और थोड़ा सा जोर लगा के एक्स्ट्रा भी लोगे. तो जो आपने फेंका था बाहर वो क्या था? ईआरवी आपने बाहर फेंका था, टीवी आपने बाहर फेंका था. ये तो आपने जो बाहर डाला वो तो आप वापस ले रहे हो, जो आपने बाहर फेंका उसको आप वापस रिटर्न कर रहे हो, और एक्स्ट्रा क्या ले रहे हो? थोड़ा सा फोर्स लगा के आप एक्स्ट्रा आईआरवी भी ले रहे हो. तो ये आपकी लंग्स की मैक्सिमम वॉल्यूम है जो आप इंस्पिरेशन कर पा रहे हो या ब्रीद इन कर पा रहे हो. ये आपकी वाइटल कैपेसिटी है लंग्स. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज
total lung capacity, that is total volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration. ठीक है, जब आप टोटल कैपेसिटी, जब आप फोर्स्ड इंस्पिरेशन करने के बाद आप टोटल कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को अकोमोडेट कर पाते हो आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी. अगेन मैं आपसे कहती हूँ बेटा जबरदस्त इंस्पिरेशन करो, जोर से सांस खींचो, अंदर लो. तो जब जोर से सांस आप लेते हो तो दिस इंक्लूड्स, जोर से सांस लेने में क्या क्या आ जाता है आपके पास? आरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम तो पहले से ही था आपके लंग्स में, राइट. फिर ईआरवी, ओके, क्योंकि आपने तो फोर्सिबल एक्सपिरेशन करा ही नहीं, तो आरवी तो पहले से ही है. ईआरवी भी पहले से ही है क्योंकि आपने फोर्सिबली एक्सेल नहीं किया. फिर टीवी, क्योंकि आप नॉर्मल इंस्पिरेशन तो कर ही रहे हो और साथ में आप थोड़ा सा जोर लगा के इंस्पिरेशन कर रहे हो, तो आईआरवी भी ले लिया आपने. यानी आपका टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी एंड आईआरवी. या आप इसको ये भी लिख सकते हो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी क्या क्या है देखो, सेम वही ईआरवी टीवी आईआरवी, प्लस सिर्फ एक चीज ऐड हो गई इसमें, क्या? रेसिडुअल वॉल्यूम. सो दिस इज योर टोटल लंग कैपेसिटी. अंडरस्टूड? आई होप आई एम क्लियर. मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी इस वीडियो में आपको सारी लंग कैपेसिटीज और वॉल्यूम, वेरियस वॉल्यूम्स समझा सकूं जो लंग्स में हम लोग इस चैप्टर में हम पढ़ाते हैं. एंड बस एक थोड़ा सा क्लियर करने वाली बात है, थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं. अगर आपको समझ आ रही है तो फाइन, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं एंड आई डेफिनेटली क्लियर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.